I'm not going to go back and talk about myself. I would just like to start with what we have to speak to you today. तो पास्टर जी ने ऑलरेडी मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया है, तो मैं अभी वापस मेरे बारे में नहीं बताऊंगी, मैं डायरेक्ट वचन की ओर चलूंगी. So before I start, I would like to share with you all a short story. तो हम एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करेंगे. You probably think, why am I sharing a story? Because you know what? Is there anyone in this place who doesn't like a story? A good story? तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैं कहानी से क्यों शुरुआत कर रही हूँ, लेकिन हम में से कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिसे कहानियां पसंद नहीं है? We all love stories. We all grew up on stories. हम सभी को कहानियां सुनना पसंद है, हम सभी कहानियां सुन के ही बड़े होते हैं. And the main reason why we are talking through a story is because Jesus used to speak through stories. और एक मेन रीजन जिसके वजह से हम कहानियों से शुरुआत करेंगे वो ये है कि यीशु मसीह भी कहानियों से ही शुरुआत हर चीजें सिखाते थे. And he used to teach deeper things through stories. और वो काफी गहरी बातें सिखा देते थे कहानियों के द्वारा. And the stories would help people to actually remember things better. और कहानियों के कारण लोग जो गहरी बातें जो भी यीशु मसीह सिखा रहे हैं वो अच्छे से याद कर सकते हैं. So this story is about a little boy. ये कहानी एक छोटे लड़के के बारे में है. So this boy is a very young boy, and he is very keen on building a boat. ये जो छोटा लड़का है वो उसे काफी चीजें बनाना पसंद है. So he starts building a boat from scratch. He gathers stuff and he starts building it. तो वो अपने लिए एक छोटी सी नाव बनाने की शुरुआत करता है. वो एक चीजें इकट्ठा करके खुद के लिए एक नाव बनाता है. And he puts a lot of effort in building this small boat. और वो काफी मेहनत करता है ये नाव बनाने के लिए. When this boat is ready, he gets very happy. और जब ये नाव बनकर तैयार हो जाती है वो बहुत खुश हो जाता है. And he takes this boat and puts it in the water in the river to try and test it. और वो उस नाव को परखने के लिए जाकर एक नदी में उस बोट को रख देता है. And guess what? और सोचिए कि क्या होता है. The boat floats. वो नाव तैरने लग जाती है. That's what it's supposed to do. ये उसी लिए तो बनाई गई थी. So the boat starts floating, and because it starts floating, the boy is very happy that he's succeeded in building a boat. और जब ये नाव तैरने लग जाती है वो बच्चे को काफी खुशी मिलती है क्योंकि उसकी जो मेहनत है वो रंग लाई. And he's so happy, he's so joyed, he starts dancing, he starts running around because his boat is floating. और वो बहुत ही खुशियां मनाता है, नाचने लग जाता है क्योंकि उसकी बोट चलने लग जाती है. And then what happens is that there's a strong wind that blows and it starts pulling the boat away from the boy. और फिर थोड़ी देर में एक बड़ी आंधी आ जाती है और वो उस बोट को उस बच्चे से दूर लेके जाती है. Because it starts pulling the boat away from the boy starts running after it, trying to catch the boat. और वो उस तूफान उस बोट को बच्चे से दूर लेके जाता है, इसीलिए वो बच्चा वो बोट को पकड़ने के लिए उस बोट के पीछे दौड़ता है. He runs really fast and hard, but he can't catch the boat. वो काफी तेज दौड़ता है लेकिन फिर भी वो उस बोट को पकड़ नहीं पाता. And the boat keeps floating away from him, and apparently it's gone. और वो बोट बहुत ही दूर निकल जाती है और वो काफी दूर चली जाती है. And the boy gets sad. और उस बच्चे को काफी उदासी होती है. He's heartbroken. He goes back home and he's very sad, and for the next few days he remains sad. और उस बच्चे का दिल टूट जाता है और कई दिनों तक उसे काफी उदासी होती है. Then one day what happens? फिर एक दिन क्या होता है? When he's coming back from school, he passes by a shop and he sees his boat is in the shop.
फिर एक दिन वो बच्चा स्कूल से लौट रहा होता है, तभी एक दुकान में वो अपनी नाव को देखता है। And he gets really happy. He goes close to the shop, to the window where the boat is, and he looks at the boat closely and he sees that that is his boat. और वो बच्चा बहुत ही खुश हो जाता है और वो अपने दुकान के पास और नजदीक जाता है और उसने अपने बोट को काफी नजदीकी से देखता है और पहचान लेता है कि ये उसी की बनाई हुई बोट है। Because he built it, he can identify that it is his. क्योंकि ये बोट उसी ने बनाई थी, इसीलिए वो ये पहचान लेता है कि ये बोट उसी की है। He goes in the shop and he speaks to the shopkeeper. He tells him, Sir, can I please have my boat back? और वो उस दुकानदार के पास जाता है और उसे कहता है कि अंकल क्या मैं ये बोट वापस खरीद सकता हूँ? And the shopkeeper obviously refuses because he's a shop owner. He can't give things for free. और वो दुकानदार तो काफी शातिर होता है, वो उसे कहता है कि मैं बोट को मुफ्त में नहीं दे सकता। So he tells the boy the price for the boat, and the boy gets disheartened because he doesn't have the money. और वो उस बच्चे से उस बोट का दाम चुकाने को कहता है, लेकिन वो बच्चा काफी उदास हो जाता है क्योंकि उस बच्चे के पास पैसे नहीं होते उसका दाम चुकाने के लिए। Then he gets an idea and he tells the shopkeeper, Sir, can you please reserve this boat for me? I will come back with the money. तो उस बच्चे को वो एक विचार करता है और उस दुकानदार से कहता है कि क्या आप ये बोट को मेरे लिए रख सकते हैं, तो मैं वापस आके इसे खरीद लूंगा। And guess what? He goes back, he works really hard, he puts papers in people's houses, he goes and helps people for cleaning, he tries and saves all of his pocket money until he gets the amount for the boat. तो वो बच्चा काफी मेहनत करता है पैसे जमा करने के लिए, वो न्यूज़पेपर देता है और काफी काम करता है ताकि वो पैसे जमा कर सके उस बोट को वापस खरीदने के लिए। And when he has the amount for the boat, he goes back to the shop and tells the shopkeeper that, and he buys his boat back. और जब पैसे पूरे जमा हो जाते हैं तब वो वापस उस दुकान में जाता है और उस दुकानदार को पैसे देकर उस बोट को खरीद लेता है। And then when he comes out, he's so happy. He comes out, he lifts up his boat and he says, little boat, you are twice mine. Once I made you and again I bought you. और वो बच्चा इतना खुश हो जाता है कि वो दुकान के बाहर आता है और काफी जोर से खुशी से चिल्ला उठता है और कहता है कि मेरी नाव तुम फिर से दोबारा मेरे हो, एक बार मैंने तुम्हें बनाया और दोबारा मैंने तुम्हें पाया। You know what, I would like to request you to just think about this, our life, and try and relate it to that boat. मैं आपसे ये निवेदन करूंगी कि आप एक बार अपने जीवन को देखें और उस बोट के साथ अपने जीवन को रिलेट करके देखिए। Just like the boy created that boat, God formed us, God created us. जिस तरह से उस बच्चे ने उस बोट को बनाया, उसी तरह से परमेश्वर ने हम सबको बनाया। And when he formed us, he loved us. He was pleased with what he created. और जब उसने उस बोट को बनाया तब वो काफी खुश था अपनी रचना से। And he gave us the freedom to make choices. और हमें परमेश्वर ने आजादी दी कि हम अपने खुद के निर्णय ले सके। But just like the wind blows that boat away, same way, there are problems and things in life that blows us away from the Lord. और जिस तरह से वो तूफान आकर उस बोट को उसके वो बच्चे से दूर लेके गया, उसी तरह से हमारे जिंदगी के तकलीफें और जो भी प्रॉब्लम्स है वो हमें परमेश्वर से दूर लेके जाते हैं। It can be anything. It can be poverty, finances, it can be sickness, it can be family problems, it can be anything. और ये प्रॉब्लम्स कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि गरीबी हो या बीमारी हो या परिवार के कोई समस्या हो या कोई भी चीजें हो सकती हैं। Even addictions, they draw us away from the Lord.
ये कोई किस तरह का व्यसन भी हो सकता है जो हमें परमेश्वर से दूर करता है। And when such problems come in our life, what we do, the first thing we do is we try and run away from the Lord. और जब इस तरह का कोई समस्या हमारे जीवन में आती है तब हम सबसे पहली चीज ऐसे करते हैं कि हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं And we try and marinate in our own mess. और हम हमारे ही दुख में खो जाते हैं। Most people try and run to addictions. People try and they run to different things, but they don't want God. और कई लोग परमेश्वर की ओर जाने की बजाय वो दुनिया की चीजों में चली जाते हैं। But God sees everything because He created us. He always sees what is happening in our life. लेकिन परमेश्वर ने हमें बनाया है और वो हमारे जीवन में होने वाली हर चीजों को देखता है और जानता है। And because He couldn't bear the separation from us, Jesus came in the picture. और परमेश्वर हमसे अलग नहीं होना चाहता, इसीलिए उसने यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा। And I believe we all know John 3:16. और मैं ये यकीन करती हूँ कि हम सभी को यूहन्ना 3:16 वचन तो पता For होगा। God so loved the world that He gave His one and only Son, so that whoever believes in Him shall not perish but have an eternal life. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास रखे वह नष्ट ना हो पर अनंत काल का जीवन पाए। And just like the boy paid the price for that boat, Jesus paid the price for us. और जिस तरह से उस बच्चे ने उस बोट के लिए कीमत चुकाई, उसी तरह से यीशु मसीह ने हमारे लिए एक कीमत चुकाई। Because He loves us, He wants us, He doesn't want us to be separated from Him. क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करता है, वो हमसे अलग नहीं होना चाहता। He died for us, not because of anything that we did, but because of what He did for us. वो उसने हमारे लिए अपनी जान दी, इसीलिए नहीं कि हम इसके लिए योग्य है, लेकिन उसने यह इसीलिए किया क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। And through Him we receive salvation as a promise. और उसी के द्वारा हम उद्धार को पाते हैं। In Romans chapter 10 verse 9, रोमियो की किताब 10वां चैप्टर का 9वां अध्याय और 10वां वचन, read it. कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तुम निश्चय उद्धार पाओगे। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। So all we have to do in this is we have to repent and believe that Jesus is Lord. हमें सिर्फ यही करना है कि हमें पश्चाताप करके यीशु मसीह पे विश्वास करना है। Because that's what the word says. If you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. क्योंकि वचन यही कहता है कि अगर हम यीशु मसीह पे अपने मन से विश्वास रखें और अपने जुबान से अंगीकार करें कि वो परमेश्वर है, तो हम उद्धार पाएंगे। For it is with your heart that you believe and are justified. क्योंकि हम अपने मन से विश्वास करते हैं, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. और हम अपनी जुबान से उसका अंगीकार करते हैं। So that's what we wanted to tell you today, is because of what Jesus did for us. All we have to do is repent and believe. हम यही आपसे कहना चाहते हैं कि जो भी यीशु मसीह ने हमारे लिए किया, हम उस पे विश्वास रखें और अपने पापों का अंगीकार करें। If you're here for the first time, or if you're hearing any of this for the first time, I know most of us are already believers. We all know about this. This is the basis of Christianity. But if you're here for the first time, or if you're hearing it for the first time, or even if you know this, but the Holy Spirit is doing something in your heart today, I want you to pray a short prayer with us.
हम में से कई लोग ये तो जानते हैं और यीशु मसीह पे विश्वास भी रखते हैं, लेकिन अगर आप में से कोई भी ऐसा नया व्यक्ति अगर यहाँ पर है जो जिसने कभी इस प्रार्थना को नहीं किया और यीशु मसीह को अपने जीवन में नहीं स्वीकारा, तो आज आपके लिए मौका है। You might have been Christian for 20 years, all your life, whatever. But you know in your heart that somewhere along the line, you probably didn't believe it until now. हम में से कई शायद से एक विश्वासी परिवार से होंगे और ये बात को कई सालों से जानते होंगे, लेकिन अगर आप इस वक्त अपने मन से ये विश्वास रखेंगे तो ये आपके लिए मौका है। In fact, I would request all of us to just repeat this prayer after us, not because you've done anything wrong, but only to encourage our brothers and sisters because they might feel uncomfortable to repeat it. तो जो भी आज पहली बार ये प्रार्थना करने वाले हैं, तो हम सभी लोग उनके साथ ये प्रार्थना को करेंगे, क्योंकि हमारे जो नए भाई बहन अगर इस प्रार्थना को पहली बार कर रहे हैं, हम उन्हें आज एनकरेज करेंगे और उनके साथ इस प्रार्थना को दोहराएंगे। So I want all of us to close our eyes. तो मैं No one चाहती is to look हूँ anywhere. मैं चाहती हूँ कि हम सभी लोग अपने आंखों को बंद करें और यहाँ ना देखें और इस प्रार्थना को करें। Lord Jesus, पिता परमेश्वर, I thank you for loving me. मैं आपको धन्यवाद देती हूँ मुझसे प्यार करने के लिए। Forgive me for my sin. मेरे पापों को क्षमा कीजिए। I am sorry. मैं क्षमा चाहती हूँ। I turn from my sin and I turn to you. मैं अपने पापों का अंगीकार करके अपने पापों से मुंह फेर के मैं आपके ओर बढ़ती हूँ। Thank you for your son Jesus. आपके पुत्र यीशु मसीह के लिए धन्यवाद। Fill me with your Holy Spirit. मुझे आपके पवित्र आत्मा से भर दीजिए। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। Amen. आमीन। Thank you so much for everyone praying this prayer. But you know what? This is just the beginning. This was just the introduction. We are going to start preaching now. धन्यवाद सभी को इस प्रार्थना को करने के लिए, लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत था। अभी हम अपने वचन को शुरुआत करेंगे। This was just a short example of what it looks like preaching to a non-believer. ये तो एक बस एक उदाहरण की ओर की तरह से था कि हम किसी अविश्वासी व्यक्ति को किस तरह से प्रचार करेंगे। So when we are sharing gospel, do we all know what is gospel? जब हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं, तो क्या हम जानते हैं कि सुसमाचार क्या है? And why is it so significant during Christmas? और ये क्रिसमस की सीजन में इतना महत्वपूर्ण क्यों रखता है? Because it can't be Christmas without Christ in it. क्योंकि यीशु मसीह के बिना क्रिसमस तो क्रिसमस ही नहीं है। Because he is the reason for the season. क्योंकि यीशु मसीह ही तो मेन रीजन है इस सीजन का। He's not in the manger. He's not on the cross. He's sitting in heaven at the right hand of the Father. वो चरनी में नहीं है, ना ही वो क्रूस पे है, पर वो इस वक्त वो पिता परमेश्वर के साथ स्वर्ग में है। And we all know this. Do we all know this? और हम सभी ये चीज को जानते हैं। Right. So what is gospel? What exactly do we expect or to share with a non-believer? तो सुसमाचार क्या है और हम क्या प्रचार करेंगे एक अविश्वासी से? We are all believers and we know the basic of who is Jesus. हम सभी विश्वासी है और हम इस चीज को तो जानते हैं कि यीशु मसीह कौन है। But when you speak to a non-believer, a person who have never heard a name of Jesus, how are we going to talk to him? How are we going to approach them? जब हम किसी अविश्वासी व्यक्ति से बात करेंगे, तब हम किस तरह से उनको बताएंगे कि यीशु मसीह कौन है और किससे उनको हम सुसमाचार प्रचार करेंगे? I know many people just say, Jesus loves you. कई लोग सिर्फ इतना ही कहते हैं कि यीशु आपसे प्यार करता है। Or Jesus saves. या फिर यीशु मसीह बचाता है। You see that on posters, you see that on walls, you see that in ads and everywhere.
हम ये सब कई पोस्टर्स पे देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं, सब जगह पे देखते But हैं, is that really enough? Is that the whole gospel? लेकिन ये इनफ नहीं है, ये पूरा सुसमाचार नहीं है। Now, because I'm a nurse, I'm going to give you an example of a tablet, of a medication. क्योंकि मैं नर्स हूँ, इसीलिए मैं आपको एक मेडिकेशन का एग्जांपल देती हूँ। If you go to a stranger and give them a tablet, are they going to take the tablet? अगर आप किसी स्ट्रेंजर के पास जाओगे तो और अभी अगर आप उनको एक दवाई दोगे तो क्या वो उस दवाई को खा लेंगे? Unless there's a problem, people won't accept the solution. कोई भी अनजान व्यक्ति जब तक ये नहीं जानता कि एक समस्या है, तब तक वो उस समस्या का हल नहीं खोजेगा। Unless if there is someone who's got a headache and you give them a tablet, they would actually ask you what is the tablet for. And if when you tell them that this is for your headache, it will heal your headache, that's when the person is going to take that tablet. अगर आप किसी व्यक्ति को पता हो कि उसे एक सर दर्द है और तभी आप अगर जाके उनसे कहो कि ये जो दवाई है वो सर दर्द के लिए है, तभी वो उस दवाई को खाएगा। Just like that, there is a problem and there is a solution. उसी तरह से एक समस्या है और उस समस्या का हल भी है। And the problem here is sin and eternal separation from God. और वो समस्या ये समस्या है कि पाप है और उस पाप के कारण हम अनंत काल के लिए परमेश्वर से अलग हो सकते हैं। And the solution for that problem is Jesus Christ. और उस समस्या का हल है यीशु मसीह। But are we just going to say Jesus Christ? You have to tell them that Jesus came in this world. He lived a perfect life. He fulfilled the law. He died on the cross. He took all our sins on him. He died, and then after 3 days he rose again. और वो हल ये है कि यीशु मसीह हम सभी के लिए इस जगत में आए और इस दुनिया में उन्होंने हमारे लिए जीवन जिया और अपना बलिदान दिया, रक्त बहाया और क्रूस पर कुर्बान हुए। तीसरे दिन वो फिर जी उठे और वो स्वर्ग में गए और फिर से हमारे लिए आने वाले। That is the whole gospel. ये पूरा सुसमाचार है। Because when you tell someone, you have to tell them the whole story, because no one is going to accept just one word. जब हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं तब हमें पूरा सुसमाचार सुनाना है और उसे थोड़ा थोड़ा शब्द में नहीं सुनाना है, पूरी तरह से एक्सप्लेन करना है। So because we are all believers and we all know this basic, और क्योंकि हम सभी यहाँ पर विश्वासी है और हम सभी इस बेसिक चीज को जानते हैं। but what is our role in all this? लेकिन फिर अब उसके बाद क्या, हमारा इस सब में क्या रोल है? When we know that Jesus is our Lord and Savior, what next? What are we supposed to do next? जब हम ये जान लेते हैं कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, अब उसके बाद क्या? Are we supposed to continue the same life as we used to? Just the difference would be that we say we are Christian, but we live the same life, go to the same places, be in same addictions. क्या हमें उसी तरह का जीवन फिर से जीना है जो हम पहले जीते थे, और सिर्फ इतना है कि हम अब एक विश्वासी है, लेकिन हम फिर से वही पाप का जीवन और जीवन जिए? Let's see what the Bible says about it. चलिए देखते हैं कि बाइबल इस बारे में क्या कहती है। Mark chapter 16 verse 15. मरकुस 16:15। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। That's what Jesus told his disciples. ये यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा। Do we all believe that we are his disciples? क्या हम ये विश्वास रखते हैं कि हम यीशु मसीह के चेले हैं? Then that's what he said to us. क्योंकि उन्होंने हमारे लिए कहा है, Go into all the world and preach the gospel. सारी जगत में जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो। It is for all creation, not for a particular group of people.
वो सभी जाति के लोगों के लिए है, सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं है। Mark chapter 28 and verse 19. मैथ्यू Oh, sorry, Matthew chapter 28, verse 19. मत्ती का 28 का 19 से 19 और 20। Yeah. इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। Have you noticed, does anywhere in these two verses, does it say that it is only a job of evangelist? क्या आपने इस वचन में एक बार भी ये पढ़ा है कि ये काम सिर्फ एक सुसमाचार प्रचारक का है? It's not just for evangelists. We are all called to evangelize. ये सिर्फ एक सुसमाचार प्रचारक का काम नहीं है, लेकिन ये हम सभी के लिए एक आज्ञा है यीशु मसीह की ओर से। I know that it's not very comfortable. मैं जानती हूँ कि ये कंफर्टेबल नहीं है। I've been there, as you've seen. मैं भी आप ही की तरह सोचती थी। But many people like sitting to come to church. They like to do different things. They like to do the backstage things, in fact. कई लोगों को चर्च में आना पसंद है और चर्च के कामों को करना पसंद है, But no one really likes to go out of their comfort zone. लेकिन कई लोगों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पसंद नहीं है। As you know, it says comfort zone. No one really wants to go out and speak this truth. जैसे कि कंफर्ट जोन ये है कि किसी को भी बाहर जाकर सच्चाई को बताना पसंद नहीं है। Now, I would like you all to turn on Ezekiel chapter 33, verses 2 to 7. If would anyone like to read Ezekiel chapter 33, verse 2 to 7 in Marathi or Hindi? Wait. हे मनुष्य की संतान, अपने लोगों से कह, जब मैं किसी देश पर तलवार चलाने लगूं और उससे देश के लोगों की किसी को अपना पहरुआ करके ठहराए, तब यदि वह यह देखकर कि इस देश पर तलवार चलने वाली है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को चिता दे, तो जो कोई नरसिंगे का शब्द सुनने पर न चेते और तलवार के चलने से मर जाए, उसका खून उसी के सिर पड़ेगा। उसने नरसिंगे का शब्द सुना परंतु न चेता, इसलिए उसका खून उसी को लगेगा। परंतु यदि वह चेत जाता तो अपना प्राण बचा लेता। परंतु यदि परुआ यह देखने पर कि तलवार चलने वाली है, नरसिंगा फूंककर लोगों को न चिताए और तलवार के चलने से उनमें से कई मर जाए, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं परुए ही से लूंगा। इसीलिए हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने का परुआ ठहरा दिया। तू मेरे मुंह से वचन सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिता दे। So in this passage, God is actually speaking to Ezekiel, but now we are going to try and relate it to our own selves. तो इस वचन में परमेश्वर एजिकियल से बात कर रहा है, लेकिन इस वक्त ये वचन हमारे लिए है।
What does verse 7 say? God says, Son of man, I have made you a watchman for the people of Israel. परमेश्वर ये कहता है कि मनुष्य के पुत्र, मैंने तुम्हें इस्राएल के लिए एक पहरुआ ठहराया है। So hear the word I speak and give them warning from me. तो तुम मेरा वचन सुनकर लोगों को चिता दो। That's what God has asked all of us to do. We are to hear what he says and give a warning to the people who don't know anything about him. परमेश्वर ने हम सभी से यही कहा है कि हमें लोगों को चिता देना है, जो भी उन्होंने हमसे कहा है उसको बताना है। Whether they listen and obey, that's a different story. But our job is just to go out and speak the word. अगर यदि वो सुनते हैं या नहीं, ये हमारा काम नहीं है, लेकिन हमारा काम यही है कि हमें बस जाके उन्हें सुसमाचार प्रचार करना है। Whoever listens, if they repent and believe, they will be saved. जो भी सुनेगा और विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा। Whoever doesn't listen will be judged according to their own choices. जो भी नहीं सुनेगा वो उसका न्याय किया जाएगा। But we have to go and speak. लेकिन हमें जो काम दिया है वो जाके करना है। And that's why it's so important for all of us to go out and speak. और इसीलिए हमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जाके वो बताएं। It doesn't have to be that you go out and preach like I did. Evangelism can be anything from giving tracts to speaking on the street, or even being a good example of faith in Christ at your own workplace. और सुसमाचार का प्रचार जरूरी नहीं है कि आप उसी तरह से करो जैसे कि अभी आपने मुझे करते हुए देखा, लेकिन सुसमाचार का प्रचार किसी भी तरह से कर सकते हो, फिर चाहे वो ट्रैक्स को बांटना हो या जाकर किसी मित्र को जाके वचन सुनाना हो, or even at your workplace you can be a good example and share your faith to your colleagues. आप अपने काम की जगहों पे भी अपने जो भी आपके साथ जो भी लोग काम करते हैं उनसे भी जाके सुसमाचार सुना सकते हैं। But still many people feel embarrassed to talk about God. लेकिन फिर भी कई लोग एम्बैरस फील करते हैं, शर्माते हैं परमेश्वर के बारे में बताने के लिए। But you know what? Jim Elliot, he's one of, some of you might have heard his name. He said, he is not a fool who gives up what he cannot keep to gain what he cannot lose. शायद आप में से कई लोग जिम एलियट को जानते होंगे। तो उन्होंने एक बार कहा था कि वह मूर्ख नहीं है जो उस चीज को खो देता है जिसे वो रख नहीं सकता, उस चीज को पाने के लिए जिसे वो खो नहीं सकता। Did you get that? क्या आपको समझा? Or it's probably gone bouncer. He is not a fool who gives up what he cannot keep, which is your finances, your property, your pride, all those things that are perishable. वो एक मूर्ख नहीं है जो ऐसी चीजों को दे देता है जो वो रख नहीं सकता, जैसे कि पैसा, गाड़ी या जो भी इस जगत की चीजें हैं जो नष्ट होने वाली है। Because they all come and go. क्योंकि वो आके चले जाते हैं। When you die, you're not going to take anything anywhere. जब आप मर जाते हो तब आप इनमें से कोई भी चीज को कहीं नहीं लेके जा सकते। And then it says, in order to gain what he cannot lose, which is his eternity with God. और उसके बाद ये ऐसे कहते हैं कि उस चीज को पाने के लिए जो वो खो नहीं सकता, जो अनंत काल का जीवन है परमेश्वर के साथ। It does cost you everything. It is not easy to live a Christian life. Is not easy. और एक विश्वासी का जीवन जीना आसान नहीं है, वो आपको सभी चीजों का त्याग करना पड़ेगा। If you say you're a Christian and you have had an easy life, I'm not saying it in a wrong sense, but if you had an easy life, that means you're probably not living exactly how the Bible says.
और यदि आप कहते हैं कि आप विश्वासी है और अगर आप एक आसानी से जीवन जी रहे हैं तो आप शायद से एक सही जीवन नहीं जी रहे। If we actually go and speak to most of the people sitting here or even online, you know there is some issues in your life. It can be anything. In fact, there are many people who are being persecuted in their own families, in their own houses for believing in Christ. आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो अपने विश्वास के लिए अपने ही घरों में या काम की जगहों पे या बाहर आपको तकलीफें झेलनी पड़ रही है क्योंकि आप एक विश्वासी है। It does cost you everything. ये आपको सब कुछ आपका त्यागना पड़ेगा। Do you know the reason why we are sitting here today is because someone else would have paid the price so the gospel would reach us. क्या आप ये जानते हैं कि हम सभी लोग आज यहाँ पर बैठे हैं इसी कारण से बैठे हैं क्योंकि किसी ने अपना सब कुछ त्याग कर हम तक ये सुसमाचार पहुंचाया। We talk about missionaries and martyrs, those who gave everything they had. They could have lived in luxury wherever they were, but they gave up their life so they could live for Christ. हम मिशनरीज को या मार्टियर जिन्होंने यीशु मसीह के लिए अपना बलिदान दिया, अगर आप हम लोग ऐसे लोगों का जीवन देखते हैं तो उन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर हम तक सुसमाचार पहुंचाया। They had to come out of their comfort zones. And in fact, they probably would have been called as fools in their own times. उन्हें अपना सब कुछ त्याग कर हम इस तरह के जीवन को जिया और उनको कई लोगों ने नाम रखा, कई लोगों ने उन्हें मूर्ख कहा या दीवाना कहा। Even apostles, we see and we read that they were hated and they were persecuted. हम देखते हैं कि यीशु मसीह के भी जो चेले थे वो उनको भी इस तरह से कई चीजों का सामना करना पड़ा और इस सुसमाचार को प्रचार करना पड़ा। They were fools for Christ. वो सभी यीशु मसीह के लिए दीवाने थे। And they all took it as an honor to die for him. और सभी ने इस चीज को एक गर्व समझा कि यीशु मसीह के लिए वो अपनी जान तक कुर्बान कर सके। Don't think I'm asking you to go and die, but this is a representation of what it means to live a proper Christian life. और ये सोच के डरिए मत कि मैं आपसे कह रही हूँ जाके अपनी आपको जान देनी पड़ेगी, लेकिन ये मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि ये सब महत्वपूर्ण है एक मिशनरी की तरह जीने के लिए। Matthew chapter 9:37 says, don't read. Harvest is plenty, but the workers are few. मैथ्यू 9:37 ये कहता है कि पके खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। Are we all ready for the harvest? क्या हम सब हार्वेस्ट के लिए तैयार हैं? We know that there are so many people outside who have never heard about Jesus. हम ये जानते हैं कि कितने सारे लोग हैं बाहर जिन्होंने कभी यीशु मसीह के बारे में सुना तक नहीं है। And we know what things are happening around us. और हम जानते हैं कि हमारे आसपास कैसे चीजें हो रही है। So many people are dying. कितने सारे लोग तो मर रहे हैं। But they never heard about God. लेकिन उन्होंने कभी परमेश्वर के बारे में सुना तक नहीं है। They never heard about a savior and they never knew about the solution. उन्होंने कभी भी उद्धारकर्ता यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना है और पापों का जो हल है यीशु मसीह उसके बारे में नहीं सुना है। What are we afraid of? हम किस चीज से डरते हैं? Are we afraid of men who can only kill our bodies but not our soul? क्या हम उन लोगों से डरते हैं जो हमें मार सकते हैं या हमारी जान ले सकते हैं but हमारे आत्मा को नहीं मार सकते? लेकिन हमारी आत्मा को नहीं मार सकते। Matthew chapter 10:28 says, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है।
And it's all applies to all of us. और ये हम सभी के लिए है। Do we really have a choice? क्या हमारे पास एक चॉइस है? Read in 1 Corinthians chapter 9 verse 16. यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय। I'd really like to read it in a New Living Translation version because it's simpler. It says, "Yet preaching the good news is not something I can boast about. I am compelled by God to do it. And how terrible for me if I didn't preach the good news." So that's what the word says. It is our responsibility to go and preach the good news. और वचन यही कहता है कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जाकर सुसमाचार का प्रचार करें। And it's not going to be good for us if we don't do it. और ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा अगर हम ये नहीं करें। We are all obliged to do it, or we are all supposed to do it. हम सभी को ये सभी की जिम्मेदारी है कि हम ये करें। Now, because we started with a story, I'd like to end with a story. और क्योंकि हमने एक कहानी से शुरुआत की थी, हम एक कहानी से ही खत्म करेंगे। I've given you a gist about a lot of things, I know. मैंने आपको कई सारी चीजें बताई है। But this is all important and this is all a part of our Christian life. और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है और एक विश्वासी का जीवन जीने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। Now this story is about 3 demons. और ये कहानी 3 दुष्टात्माओं के बारे में है। John 10:10 says the devil comes only to steal, kill and destroy. यूहन्ना का 10वां वचन 10वां अध्याय ये कहता है कि शैतान तो सिर्फ नष्ट करने के लिए ही आता है। And just like the verse says, there are these 3 demons. They are sitting and discussing about the plan on how to destroy the people. और ये जो 3 दुष्टात्माएं हैं, ये बैठकर एक योजना बना रहे हैं कि किस तरह से वो लोगों को नष्ट कर सके। So the first demon says, तो पहली दुष्टात्मा ये कहती है, I will go down and tell the people that there is no God. मैं नीचे जाकर लोगों को भटकाऊंगा और उन्हें ये कहूंगा कि परमेश्वर ही नहीं है। And I'll make them believe in anything rather than God. और मैं उन्हें यकीन दिलवाऊंगा कि दूसरे जगत की चीजों में यकीन दिलवाऊंगा परमेश्वर के अलावा। And we know that there are many people who believe in just money, they believe in love, they believe in nature, they believe in karma, they believe in all those rubbish stuff. और हमें से कई लोग ये जानते हैं कि नास्तिक लोग जो होते हैं वो परमेश्वर पे विश्वास नहीं रखते, लेकिन प्रकृति और कर्मा और जो भी ब्रह्मांड और जो भी दुनिया की चीजें हैं उन पे विश्वास रखते हैं। So then the second demon says, और दूसरा दुष्टात्मा ये कहता है, man is not a fool. कि मनुष्य मूर्ख नहीं है। He is made of God and he is hungry for God. वो परमेश्वर से बनाया गया है और वो परमेश्वर के लिए भूखा है। He is attracted to supernatural. वो अलौकिक चीजों की ओर आकर्षित होता है। I will tell them that there are many ways to reach the top of the mountain. मैं उन्हें ये विश्वास दिलाऊंगा कि बहुत सारे तरीके हैं ऊंचाई पे जाना। And as we see that happening today as well. और हम ये देखते हैं कि हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारी चीजें हो रही है इस दुनिया में। There are many different faiths. There's something called New Age religion, all those things that you might have heard or you might not have heard. और हम देखते हैं दुनिया में आजकल बहुत सारी चीजें चल रही है, जैसे कि न्यू एज है और काला जादू है और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अलौकिक चीजों की ओर आकर्षित करती है। Then the third demon says, फिर तीसरा दुष्टात्मा ये कहता है, he is the most wicked and most cruel one of them. जो तीसरा दुष्टात्मा है वो काफी शातिर है। He says,
that despite all those things, man will know their God. और वो ये कहता है कि इन सभी चीजों के बावजूद मनुष्य परमेश्वर को पहचान लेगा। He will know his creator, who is his Lord. वो पहचान लेगा कि परमेश्वर कि किसने उसे बनाया है और परमेश्वर कौन है। So I will go and tell them तो मैं जाके उनको ये कहूंगा that God is real, gospel is real, Jesus is real. कि परमेश्वर सच्चा है, सुसमाचार सच्चा है, यीशु मसीह सच्चा है। But you have time, लेकिन आपके पास वक्त है time to repent. अपने पापों का अंगीकार करने, पश्चाताप करने के लिए आपके पास समय है। Time to live a godly life. एक विश्वासी जीवन जीने के लिए समय है। There are so many people who know they are Christian, they're born in Christian family, but they say, I'm too busy, I've got my family, I've got my job, I've got my school, all those things. So I will actually read my Bible maybe after I retire or after I do this or that, whatever. और कई विश्वासी ऐसे कहते हैं कि हमारे पास तो काफी समय है, मैं अभी अपना जीवन जीऊंगा, फिर बाद में रिटायर होने के बाद मैं बाइबल पढ़ूंगा और विश्वासी की तरह जीऊंगा। I'm too young, I need to travel, I've got my stuff, I need to see places, I need to go for holidays, I need to do this. मेरे पास दूसरे जिम्मेदारी है, परिवार है और काम है और मैं काफी बिजी हूँ, मुझे कई जगह जाना है। But do we really have time? और कई विश्वासी ऐसा कहते हैं, लेकिन क्या सचमुच हमारे पास वक्त है? Do we know if we'll wake up tomorrow morning from our sleep? क्या सचमुच हम जानते हैं कि कल हम फिर से उठेंगे? Do we know what will happen next minute? क्या हमें पता है कि अगले समय क्या होने वाला है? Do you think you'll be given a second chance once you've died? क्या आप ये जानते हैं कि आपको दूसरा मौका दिया नहीं जाएगा एक बार अगर आप मर गए तो? We're all aware that we are living in end times. हम सभी ये चीज तो जानते ही है कि हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। We know that we are living in the last hour. हम जानते हैं कि हम अंतिम समय में जी रहे हैं। Pastor has taught so much about end times and we all are aware of it. हमारे पासवान जी ने हमें कई बार अंतिम दिनों के शिक्षण के बारे में शिक्षण दिया है और हम सभी इस बात को जानते हैं। Then do we really have time? क्या हम सचमुच हमारे पास वक्त है? Not really. नहीं। Your time is now. हम आपका समय अभी है। You have to decide now whether you want to live for Christ or you want to live your ordinary life. आपको अभी निश्चय करना है कि हमें परमेश्वर के लिए जीना है या हमें इस जगत के लिए जीना है। You have to choose if you want a life or death. आपको ये चुनना है कि आपको जीवन चाहिए या मृत्यु चाहिए। You have to make that decision today to live for Christ if you want to. आपको ये निश्चय इसी वक्त अभी करना है। You have to decide for yourself. No one else is going to make that decision. आपको इसी वक्त आपके खुद के जीवन के लिए आपको ही निर्णय लेना है, कोई और आपके लिए निर्णय नहीं ले सकता। And with this I want to end today. और इसी के साथ हम इस वचन को समाप्त करेंगे। I want you all to think about your own life. You can close your eyes or you can stand if you really want to stand, or you can stay there, whatever. But I need you to think what you want to do. आप इस वक्त अपने आंखों को बंद कीजिए और अगर किसी को खड़ा होना है तो खड़े हो सकते हैं, लेकिन हम सभी लोग इस वक्त अपने आंखों को बंद करके सोचेंगे कि अपने जीवन के बारे में सोचेंगे और ये सोचेंगे कि हमें सचमुच अपने जीवन के साथ क्या करना है। Okay, I'll ask all of us to stand. ठीक है, सभी लोग खड़े हो जाए। And just close your eyes and think, are we really living for Christ? और अपने आंखों को बंद करके बस कुछ समय के लिए ये सोचे कि हम क्या सचमुच यीशु मसीह के लिए जी रहे हैं, or are we living for our own selves? या हम खुद के लिए जी रहे हैं या जगत के लिए जी रहे हैं। And do you want to live for Christ from now on? और क्या आप इस समय से परमेश्वर के लिए जीना चाहते हैं?
Do you want to do the things that he said you have to do? क्या आप उन चीजों को करना चाहते हैं जो यीशु मसीह ने कहा है करने के लिए? He said, go out and preach the gospel to all creation. यीशु मसीह ने कहा है कि जाओ और सारे जगत को सुसमाचार का प्रचार करो। So do you want to make that decision? It's up to you. तो क्या आपको ये निर्णय अभी लेना है? ये आप पे निर्भर है। And you can talk to God, make your own decisions, make your own promises with the Lord that you want to keep. और इस समय आप स्वयं परमेश्वर से बात कर सकते हैं और परमेश्वर को कह सकते हैं, परमेश्वर को वादा कर सकते हैं कि आप आपका जीवन परमेश्वर को देंगे और उसके लिए जिएंगे। It can be in any way, in any form. No one is going to force you to do that. वो किसी भी तरह से आप प्रार्थना कर सकते हैं, आपको कोई भी यहाँ पर फोर्स नहीं करेगा इस करने के लिए। But you know that you only live once, and your life, if your life is for Christ, then that is a part of your life. लेकिन हम सभी व्यक्ति इस बारे में जानते हैं कि हम अपने जीवन को एक ही बार जीते हैं और आप अपने जीवन में क्या करते हैं उस सब चीजें मायने रखती है। We live for Christ and we have to be ready to work for Christ. हमें यीशु मसीह के लिए जीना है और यीशु मसीह के लिए काम करना है। You need to decide and you need to make your promises with Lord because the time is short. और समय काफी कम है, आपको ही इसका निश्चय करना, इसका निर्णय लेना है और आपको ही आज से ही निश्चय करना है। Just pray a short prayer. अभी हम सब एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। Father God, I thank you for this wonderful time. पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Thank you for the word that you brought to us. अपने जो वचन हमारे तक लाया उसके लिए धन्यवाद देते हैं। We submit ourselves in your hands. हम अपने जीवन को आपके हाथ में सौंप देते हैं। And we surrender ourselves into your hands. और आपको पूरी तरह से हम समर्पण करते हैं। I give my life in your hands, Lord. हम हमारा जीवन आपके हाथ में देते हैं। Use me for your glory. हमारा इस्तेमाल कीजिए आपके महिमा के लिए। Forgive me if I have backslidden. हमें क्षमा कीजिए अगर हम आपसे दूर हो गए। Forgive me if I haven't heard your voice. हमें क्षमा कीजिए अगर हमने आपका आवाज नहीं सुना। Forgive me if I haven't obeyed you. हमें क्षमा कीजिए अगर हमने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया। I am sorry. हमें क्षमा कीजिए। I turn from my sin and I turn to you. हम अपने पापों का अंगीकार करके पापों से मुड़ के हम आपकी ओर आते हैं। You be glorified from my life. आपकी महिमा हो हमारे जीवन से। In Jesus' most precious name. यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। Amen. आमीन।